এয়া কোনো চিনেমা হলত চিনেমা চলি থকা নাই, এইটো 3D আউটডোৰ এনিমেশ্যনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা এটা প্ৰজেক্ট হয়। আমাৰ ইতিহাস গান্ধী মণ্ডপত স্থাপন কৰা হৈছে। বলক চাওঁ আহক। গুড ইভিনিং, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আৰু আজি সন্ধিয়া উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা গান্ধী মণ্ডপত। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু শুনি আহিছিলোঁ, শ্ব' এটা ধুনীয়া লাইটিং শ্ব' হয় বুলি শুনিছিলোঁ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা। তো চেষ্টা কৰিম আপোনালোক সকলোকে দেখাবলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো মই গান্ধী মণ্ডপৰ পাছফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সন্মুখৰ পৰা আহোঁতে মোবাইলটো ইউজ কৰা নহ'ল, তো গোটেইখিনি ভিতৰৰ ভাগ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই আহিলোঁ। এটা এণ্ট্ৰি ফিজ 20 টকা ল'ব, আপোনালোকে এজনৰ 20 টকাকৈ। খুব ধুনীয়া। আৰু লাইটিং শ্ব'টোৰ কথা সুধিলোঁ, যিটো মই দেখিছিলোঁ এইটো সন্ধিয়া 7টা বজাত হ'ব। নৰ্থ ইষ্টত সকলোতকৈ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ জাতীয় পতাকাখন গুৱাহাটী গান্ধী মণ্ডপত স্থাপিত। এয়া সন্ধিয়া টাইমত গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ কিছু দৃশ্য গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা আগত উমানন্দ। আৰু তলত ধুনীয়াকৈ নাম প্ৰসংগ চলি আছিলে, যিহেতুকে আমি সন্ধিয়া টাইমত গৈছিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে শুনিবলৈ। লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'ব ধৰিলে, ইয়াৰে লাইটবোৰ জ্বলিলে। খুব ধুনীয়া ভিতৰ ভাগত, যিহেতুকে সন্ধিয়া হ'ল আৰু গুৱাহাটী সকলোৰে ঘৰে ঘৰে লাইটবোৰ জ্বলিব ধৰিলে। খুব ধুনীয়া দেখি। আৰু আগত উমানন্দখন দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া। ভাল লাগিল আহি সন্ধিয়া টাইমত। আৰু আপোনালোকে আহিব। ধুনীয়া 7টা বজাত শ্ব'টোৰ কাৰণে ময়ো ৱেইট কৰি আছোঁ। মই আহি পাইছিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে অলৰেডি 6টা বজাই নাই মই আহি পোৱালৈকে। এঘণ্টা আৰু ৱেইট কৰিব লাগিব। চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভাল লাগিলে আহি কিনে। আপোনালোকে আহিব সন্ধিয়া টাইমত। ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক, লাইটিং শ্ব' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, সেইটো 6:45 আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াতে চেয়াৰ আছে, আৰু পাৰ হেড এজনৰ 50 টকা ল'ব। সন্ধিয়া টাইমত 7টা বাজিলে শ্ব' আৰম্ভ হৈ গ'ল। গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব ধুনীয়া লাইটিং। নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ 3D লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' গান্ধী মণ্ডপত স্থাপিত। আৰু ইয়াত আমাৰ অসমখনৰ পৌৰাণিক ইতিহাস গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'বলৈ গৈ আছে। और शहीदों का देशभक्ति की कथाओं का मैं सुना रहा हूँ कवियों, संतों और महापुरुषों की इस धरती की अनसुनी कहानी। आदिकाल का एक नया सवेरा। वेद व्यास के द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत, उसमें वर्णित है बलशाली राजा नरकासुर और भागवत की कहानी, जो प्राग ज्योतिषपुर के इस पावन धरती पर पैदा हुए। नरकासुर विदेह के राजा जनक के दत्तक पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। किरात राज को समाप्त करके प्राग ज्योतिषपुर में सत्ता संभाली थी। कामाख्या देवी की कथा और नीलाचल पर्वत पर मौजूद मेघला उजोमा की सीढ़ियां नरकासुर के होने का संकेत करती है। मैं नरकासुर के समकालीन रहे सोनितपुर के राजा बाणसुर और विष्णु के राजा भूष्म के शौर्य का भी गवाह हूं, जिनकी कहानियां गाहे बगाहे भगवान श्री कृष्ण से जा जोड़ती है। के लिए भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरने से बेहतर और क्या हो सकता है। स्वर्ग से भी सुंदर ओ मेरे प्रिय प्राग ज्योतिषपुर, मुझे अपनी गोद का भी। यही भागवत अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ चला। राजा भागवत दूसरे पांडव अर्जुन के हाथों युद्ध स्थल में मारा गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। भागवत के बाद प्राग ज्योतिषपुर की इस पावन भूमि पर शासन करने वाले 17 शासक आए। राजवंश के अंतिम शासक सुपर्णक का
सफाया कर दिया गया। पहली सेना का नेतृत्व करने वाले पुष्यवर्मा ने राजज्योतिषपुर के सिंहासन का दावा किया। वर्मन वंश के 12 राजाओं ने इस भूमि पर शासन किया और अंत में मध्यकालीन भारत के कामरूप राज्य के सबसे महान और सबसे सम्मानित राजा कुमार भास्कर वर्मा का जन्म हुआ। भास्कर वर्मा आजीवन अविवाहित रहे। भास्कराब्द कैलेंडर उन्हीं के राज की देन है जो आज भी प्रचलित है। भास्कर वर्मा के राज में प्राचीन कामरूप देश में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काफी प्रगति की। कुमार भास्कर वर्मा के शासनकाल में 3 यात्री होमसांग भी कामरूप आए। इलाहाबाद स्तंभों और शिलालेखों में इस धरती की महिमा है। उत्तर भारत के महान राजाओं में से राजा हर्षवर्धन भास्कर वर्मा के परम मित्र हैं। उनकी मित्रता की कथा आज भी इतिहास में दर्ज है। यहाँ राजा भास्कर वर्मा की संतान है। वो बहुत बड़ा विद्वान है। उसकी प्रजा उस पर जान न्योछावर करती है। दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। राजा बौद्ध नहीं, लेकिन फिर भी वो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करता है। भास्कर वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। किसी वंशज के न होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। शाल स्तंभ वंश ने कामरूप की सत्ता संभाली। कई उतार चढ़ाव के बावजूद शाल स्तंभ वंश का शासन चलता रहा और अंतिम राजा त्याग सिंह निस्संतान रहे। फिर पाल वंश के राजा जंगमाल कामरूप की सत्ता पर बैठे और उसके बाद राजा नीलध्वज ने शासन संभाला और प्रागज्योतिषपुर से हटाकर कामतापुर को अपनी राजधानी बनाई। इस तरह उसने कामरूप की सीमा में विस्तार करना शुरू किया और फिर कामरूप को कामतापुर के नाम से जाना जाने लगा। राजा नीलध्वज के देहांत के बाद राजा दुर्लभ नारायण कामतापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके शासनकाल में रायकों के 7 परिवार और ब्राह्मणों के 7 परिवार कन्नौज से आकर कामरूप में बस गए, जिनमें श्रीमंत शंकर देव के पूर्वज चंडीगढ़ ब्राह्मण भी थे। दुर्लभ नारायण के बाद राजा हुए चक्रध्वज और इन्हीं चक्रध्वज के शासनकाल में सन 1449 में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ। मानव धर्म और समाज की एकता के प्रति गहरी लगन के साथ भेदभाव से मुक्ति नए समाज के निर्माण के संकल्प के साथ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने अहम के धर्म और संस्कृति के दर्शन को पूरी तरह से बदल दिया। एक तरफ एक शरण नामक धर्म या नव वैष्णव धर्म की स्थापना की गई तो दूसरी तरफ अहमिया भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति की नई नींव भी रखी गई। अहमिया भाषा में नाटकों और अभिनय को एक नया रूप मिला। अंतिम राजा नितिपाल अहोमों के साथ युद्ध में मारे गए और उनकी रानी साधिनी ने चढ़ाई करती अहोम सेनाओं से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए चंदनगिरी पर्वत से छलांग लगाकर जान दे दी। पाटकाई की पहाड़ियों को लांघता हुआ कौन मूंगरी मूंगरम में 18 साल राज करने के बाद सिपाम से दिही नदी के पानी को खींचता हुआ स्वर्गदेव सुकाफा का उदय हुआ। उसके साथ उसकी पैदल सेना घुड़सवार और पुरोहित भी है, मगर महिलाएं साथ नहीं थी। उसने मोरान राज्य की 4 राजकुमारियों से विवाह किया। ये कामरूप के अन्य राजाओं से समझौता करता हुआ आया और स्वर्गदेव ने जल्दी ही पूरे प्रांत पर आधिपत्य कायम कर लिया। सुखाफा एक अपराजय राजा के रूप में उभरा और उसका साम्राज्य अहोम की धरती के नाम से जाना गया। इस तरह असम के घरों के खास आकार की शुरुआत हुई। स्वर्गदेव सुकाफा ने नए विचारों को इकट्ठा किया और नई प्रेरणा के साथ असम में सामाजिक बदलाव के लिए गोड़ असम की नींव रखी
39 वर्षों के अपने शानदार शासन के बाद कमजोरी और बुढ़ापे के कारण वो 1268 में स्वर्गवासी हुए। संकट और समृद्धि के बीच अहम राजाओं ने 600 वर्षों तक शासन किया और एक गौरवशाली अध्याय लिखा। এতিয়া অসমৰ মুখ संघर्ष और लड़ाई की शुरुआत तुम नहीं बल्कि 12 बार अहम पर आक्रमण। पहला हमला सरकारों की लड़ाई में हुआ। कामरूप के राजा पितु की सेना ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से आघात में देखा। उत्तर भारत से आए सुल्तान को राजा पितु के हाथ एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बर्नवाली, कजली मुख, इटाखली, मोरंदी मुख और गुवाहाटी, इन सभी इलाकों में मुगलों की शर्मनाक हार हुई। सराय घाट युद्ध के इतिहास की गाथा गौरवशाली है। औरंगजेब की ओर से आमेर के राजा राम सिंह की विशाल फौज और महानायक ललित बोरफुकन के नेतृत्व में खूंटी की अहम सेना की जंगी बेड़े का टकराव हुआ। राम सिंह का काम तमाम करने के लिए ही लचित बरफुकन का जन्म हुआ है। किसी ने उसे उकसाया कि वो इंद्रवंशीय वीर आहोम स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहा के खिलाफ युद्ध लड़े। मुझे दुश्मन को मानह नदी के उस पार खदेड़ना होगा। मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो। बीमारी की हालत में भी मुझे लड़ना है। कोई भी बाधा लचित बरफुकन को रोक नहीं सकती। नदी तक अहम साम्राज्य का विस्तार हो गया। इस तरह अहम राज्य की सीमा बढ़ी और बढ़ता गया राजा मंत्रियों का अहंकार। अचानक अहम साम्राज्य पर अंधेरा मंडराने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मंत्री सलाहकार पूर्णानंद बूढ़ा गोहाई का अटमय निधन हो गया और भरोसेमंद समझे जाने वाले मदन चंद्र बरफुकन ने अहम पर चढ़ाई करने के लिए बड़ी सेना के रास्ते खोल दिए। बर्मी सेना सीमा का उल्लंघन करते हुए हाजिरा चौकी तक पहुंची, जिस पर ब्रिटिश कंपनी का इंतजार था। इसके साथ ही लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। ये एंग्लो बर्मी युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें डेविड स्कॉट, लॉर्ड एमहर्स्ट और कैप्टन रिचर्ड ने अलग अलग युद्ध में बर्मी सेना को पराजित किया। ब्रिटिश सेना बर्मी सेना को यांगबू नामक स्थान तक खदेड़ती चली गई। एवा के राजा ने 24 फरवरी 1826 को यांगबू के संधि पर हस्ताक्षर किया और अहम राज्य के केंद्र रंगपुर के करीमपुर में ब्रिटिश यूनियन जैक लहराने लगा। आज मेरे राज्याभिषेक का दिन है। मुझे अपने हाथ में हेंगडांग लेकर सिंहासन पर चढ़ना है। मैं जनता की सेवा के लिए, देश का उद्धार करने के संकल्प के लिए ये सब कुछ विसर्जित कर रहा हूं। जनता मुझे जिस आसन पर बिठाएगी वो मुझे स्वीकार्य है। इस खुली हुई हेंगडांग को हाथ में लेकर कसम खाता हूं, अपने राज्य के सम्मान की रक्षा के लिए देश के दुश्मनों का काम तमाम कर दूंगा। ये कौन है जिसने शपथ से खलबली मचा दी? क्या ये अहम राजकुमार गोमधर कुंवर है? ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पहली बगावत थी। अंग्रेज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस जमीन को कच्चा तेल निकालने के लिए खोदा, काटा और इसके पूरे इलाके में चाय के बागान थे।
हरे सोने की खून। अंततः इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की पुष्टि हुई, मगर देश भर में विदेशी शासन के खिलाफ कई विद्रोह भड़क उठे। मणिराम दीवान और पियाली फुकन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। मैं आपसे विनम्रता सीखने नहीं आया हूँ साहब। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांडबू संधि के किस समझौते के तहत आपने असम के सिंहासन पर कब्जा किया है? सैकड़ों वर्षों के राजघड़िया मोइरांग को खोदकर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात अपने देश भेज दिए। क्या ये एक सभ्य राष्ट्र की पहचान है? गलती से भी ये भूल मत करना साहब। भले ही मणिराम दीवान को कुचल कर मार दिया जाए, लेकिन धोखेबाज जालिमों के सामने वो कभी झुकेगा नहीं। 26 फरवरी 1858 को मणिराम दीवान को फंदे से लटका दिया गया। इस प्रकार असम के पुत्रों पियाली फुकन, जयराम बरुआ, मणिराम दीवान, पियोली बरुआ और कुशाल कंवर को लटका दिया गया। तब मुझसे बस इतना ही हुआ कि मैं इस मंजर को बहुशी देखता रहूं और बहता रहूं। 1756 में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ, जहां से 200 साल के ब्रिटिश शासन का रास्ता खुला और शुरू हुआ मानव इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद का काला खतरा। जब 1765 में अंग्रेजों द्वारा ग्वालपाड़ा को शामिल किया गया, तो राणा राम चौधरी की अध्यक्षता में 800 मूल निवासियों के एक समूह ब्रिटिश राज पर चढ़ाई। इस प्रकार 1788 का 22 नवंबर असम में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार युद्ध की तारीख के रूप में दर्ज है। उसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन ने क्रांति की लहर चलाई। अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया है। हमारी माँ की आंखों में आंसू है। असम के लोगों में देशभक्ति का जोश भर गया था। बंबई में भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित हुआ। करुणराम फुकन, नवीन चंद्र बोरदोलोई, कुलधर चालीहा और चंद्रनाथ शर्मा ने वहां पहुंचकर गांधी जी को असम आने का न्योता किया। सन 1921 में महात्मा गांधी पहली बार असम आए और गुवाहाटी नगर भीड़ के बीच से होते हुए गांधी जी करुणराम फुकन के घर पहुंचे और उनके घर के सामने के मैदान में 25,000 लोगों की जनसभा हुई। मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे इतनी दूर आमंत्रित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ मेरी बातें सुनकर चुपचाप अपने अपने घर लौट जाने के लिए है? अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आगे कुछ नहीं कहना। नहीं, ऐसा मत करें। हम आपको इस तरह वापस लौटने नहीं देंगे। अगर आप लोग सचमुच स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कीजिए। असम में पूरे भारत की तरह राष्ट्रवाद की विदेशी कपड़े और सामान आग में फूंक दिए गए। हर वर्ग के लोगों ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार में हिस्सा लिया। इसके बाद गांधी
जी जहाज से तेजपुर रवाना हुए और उसके बाद नागांव, वहां से जोरहाट और फिर मरियानी होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचे और वहां से ब्रह्मपुत्र की वादियों का सफर तय करते हुए सिलचर। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन पांडु में आयोजित हुआ। तब महात्मा दूसरी बार असम आए। सन 1934 में महात्मा गांधी तीसरी बार असम आए और उन्होंने 10 दिनों तक असम के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। महात्मा के इस असम भ्रमण का मकसद था हरिजन हित के लिए जागरूकता। अनेक सेनानियों ने भूमिगत होकर राजनीतिक हलचल मचा दी थी, यहाँ तक कि कमला मीरी की जेल में मृत्यु हो गई। अहिंसक जनता पर गोरे सैनिकों ने धड़ल्ले से गोलियां बरसाई। भोगेश्वरी फुकनानी, अभिराम सुत, ब्लोराम सुत, मंबरनाथ, रतन कचेरी, मंगल कुर्कू, राउतराम बोरो, लकी हजारिका और भी बहुत लोग शहीद हुए। आजादी के संघर्ष में 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ अपनी जान देने वाली सबसे कम उम्र की लड़की थी। यहाँ तक कि एक भिखारी और एक साधु को भेकियाजुली में ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से मारा। थाने में कनकलता बरुआ हाथ में तिरंगा झंडा ताने इस तरह खड़ी थी जैसे आजादी के लिए मचल रहे करोड़ों दिलों की धड़कन को संभाले खड़ी। ब्रिटिश सेना की गोलियों ने कनकलता और मुकुंद काकती के सीने को ठंडी कर दिया। 1946 में महात्मा गांधी चौथी बार असम आए। इस बार वो असम में हफ्ते भर रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में असम के लोगों की भूमिका और देशभक्ति ने महात्मा गांधी को फिर असम आने के लिए प्रेरित किया था। गुवाहाटी आते वक्त गांधी जी जहाज में सवार होकर सुवालकुची गए, जहां असम के बुनकरों की कुशलता को देखकर वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भावुक होकर कहा, आसाम की महिलाएं हथकरघे पर अपने सपने बुनती हैं। गांधी जी के असम आगमन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई से एक बार गांधी जी ने कहा था, आसाम खुद न मरे तो दूसरा कोई भी आसाम को मार नहीं सकता। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयासों ने असम को पाकिस्तान का परिशिष्ट बनने से बचा लिया। इन तमाम संघर्षों और निराशा के दिनों के बीच आशा की एक किरण रही। नया सवेरा था। आखिरकार भारत आजाद हो गया। এই প্ৰগ্ৰেমটো গান্ধী মণ্ডপলৈ চাবলৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত এবাৰ হ'লেও অনুভৱ হ'ব এজন অসমীয়া হিচাপে যে আমি ইংৰাজী ভাষাটোক লৈ যিমান গৌৰৱ কৰোঁ, এই ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতৰ কিমান মানুহে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে আৰু আমি এই ইংৰাজী শব্দটোক লৈ কিনে আজিও বহুতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। जीवन के नए और बेहतर मतलब की खोज में असम के लोग अब एक साथ मिलकर जीवन के गीत गा रहे हैं। বহুত দিনৰ আশা চাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, চোৱা হৈ গ'ল আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছিলোঁ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কণ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আছে বা ডাঙৰে সকলোৱে চাবলৈ আহক এই প্ৰগ্ৰেমটো। গান্ধী মণ্ডপ হয়, লোকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বহুতে জানে। আৰু তেন্তে গুড নাইট।